Good morning, students. Today we are going to see the next 4 principles of Fayol. So let's start with it. The next principle, up till now we have seen the 4 principles: unity of command, authority and responsibility, division of work and standardization of work. So we are now moving to next 4. The 5th one is unity of direction. Now what do you mean by unity of direction? According to Fayol, principle of unity of direction means each division of organization must have its own in charge, its own plan and execution resources to achieve specific goal. इसका मतलब क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होना चाहिए, सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. So there is a basic difference between unity of command and unity of direction. Unity of command जो हमने previously पढ़ा, उसका मतलब क्या था? Unity of command means only one boss. यानी अगर कोई भी वर्कर को किसी भी तरह का अगर उसको गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस चाहिए होगा तो इट कैन बी टेकन ओनली बाय वन बॉस. जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट्स दैट all the department, all the organization must have different head and that head would be guiding his or her team. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट इट शुड बी हेडेड बाय द सेल्स मैनेजर who will be setting the sales target and they will be preparing the marketing strategies to achieve the target. Similarly प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसको कौन हेड करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर, जिसका काम क्या होगा? प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना एंड सो ऑन. सो हाउएवर ये जरूरी चीज इसमें है कि सेल्स और प्रोडक्शन इंचार्ज दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए so that all the activities can be done effectively. So that is your unity of direction, or that all the efforts of the organization it should be coordinated and it should be focused towards achievement of organizational goal. So unity of direction can be successful only when हर एक डिपार्टमेंट का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेम प्लान फॉलो करे एंड सेम हेड होना चाहिए डिपार्टमेंटल वाइज का, that they would be leading. So there is a basic difference between unity of command and unity of direction. Unity of command का concept क्या था? One subordinate to provide orders to the superior or the workers. Whereas unity of direction क्या है? Each group of activity with the same objective, they must have one head and one plan. The main aim of unity of command was to prevent dual subordination. Whereas यहाँ पे unity of direction का main aim क्या है? To prevent overlapping of activities. And unity of command will affect whom? It will be affecting only individual employees, whereas the unity of direction it will affect the entire organization. Now the next principle is subordination of individual interest to general interest. That means the interest of an organization it should be given priority as compared to that of individual employee. जो भी ग्रुप का इंटरेस्ट है वो ग्रुप के इंटरेस्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना है, ना कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. So interest of larger group of people cannot be sacrificed for interest of an individual, जितना भी वो चाहे कितना भी important part क्यों ना हो. So it is the responsibility of the manager to ensure that the application of this principle should be there with a proper behavior. जैसे for example, a company is working with an objective to be fair. मतलब जब भी employees को उनको सैलरी देना है तो it has to be fair. अब एक मैनेजर है जो बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत हाई सैलरी, ही इज डिमांडिंग हाई सैलरी. सो यहाँ पे कंपनी इट वोंट अग्री टू इट्स डिमांड बिकॉज इट विल हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉइज एज वेल. सो व्हाट डज द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट जनरल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. कोई भी अगर एम्प्लॉय कोई भी डिसीजन लेते हो आप तो इट शुड बी टेकन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप एज अ होल एंड नॉट एज अ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल लेवल के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप ग्रुप के इंटरेस्ट को दाव पे नहीं लगा सकते हो. सो दैट इज योर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गोल इंटरेस्ट. द थर्ड प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. नाउ व्हाट डज दिस रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंडिकेट? Treat all the employees equal and fair in terms of compensation and growth. इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज है आपके, हर एक एम्प्लॉय को आपको इक्वल एंड फेयर वेजेस देने चाहिए, कंपेंसेट करना चाहिए और सबको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको देनी होगी. बट ऑब्वियसली बेंडिंग के बेस पे आप डिसाइड करो. जैसे कोई वर्कर है तो सारे वर्कर की एक लेवल की सैलरी होनी चाहिए. सिमिलरली अगर मैनेजर है तो मैनेजर्स की उस लेवल की सैलरी होनी चाहिए एंड सो ऑन. So however ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि whatever wages are paid to the employees it must ensure reasonable SOL, that is standard of
लिविंग। एटलीस्ट उनको आपको इतना वेतन तो देना चाहिए कि वो एक सोबर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो बेसिक नीड है रोटी कपड़ा, एटलीस्ट वो उस सैलरी से या वेजेस से सेटिस्फाई कर सके। देन मोर ओवर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट कंपनी की भी उतनी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सैलरी, बहुत सारी सैलरी बोल दी है सब लोगों को काम करवाने के लिए, लेकिन आपके पास उतनी फंडिंग ही नहीं है कि आप उनको सैलरी दे सको। सो द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वॉट एवर वेजेस आर यू आर पेइंग दे शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। दैट इज जिसकी जितनी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से आपको वेजेस देनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन आप उसको फुल सैलरी दे रहे हो, जबकि किसी की प्रोडक्टिविटी एकदम अप टू मार्क है या ज्यादा है और उसको भी सेम लेवल, तो वो क्या होगा, उनके बीच में भी प्रेजुडाइज या बायसनेस जैसी चीज आ जाएगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग इज ओनली इन वन हैंड, दैट इज फुल्ली सेंट्रलाइजेशन इज देयर, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। So in simple words, centralization means concentration of decision making authority, whereas decentralization means dispersal of decision making authority among more than one person. लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो there should be a need to balance the subordinate involvement through decentralization but retain final authority through centralization. इसका मतलब क्या है, आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। आप आपके सबॉर्डिनेट को जितनी अथॉरिटी दे सकते हो वो दो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंसिपल है, टीचर्स है, अब हर टीचर को अपने अपने सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में, कोई पैटर्न में कुछ भी चेंज लाना है तो वो फाइनल डिसीजन किसका होगा, इट वुड बी इन दी हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल ओनली। सो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, इट इंडिकेट्स दैट आप पूरी की पूरी अथॉरिटी जिसको देनी है आप अथॉरिटी दो, लेकिन फाइनल डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज। एंड ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का काम कैसे होगा, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई भी कोर डिसीजन आपको लेना है, सो द अथॉरिटी टू टेक द कोर डिसीजन इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन। वेरेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई रूटीन डे टू डे बिजनेस डिसीजन लेना है, so it should be delegated to middle and lower level management, that is indicated as decentralization. So that's all for today. So tomorrow we'll see next set of principles. Thank you.